Welcome to MSCJ Mic'd Up, your one-stop podcast for health, finance, and everything under the sun. Brought to you by Somaya Vidyavai University. We are here to spark conversation, ask bold questions, and keep things real. I am your host Sakshi Swaru, and today I am joined by Preeti Chikne, a nutrition student. Here's to unpack the topic food craving. So grab your headphones, settle in, and let's mic up for the conversation you won't want to miss. Welcome, Preeti. So, can you please give your brief introduction to our listeners? So thank you so much, Sakshi. I'm really glad to be here. I'm Preeti Chikne, a food science and nutrition student. So through my academics and practical exposure, I have developed a deep understanding on how food affects our health, body, and overall well-being. And exploring topic like food craving really helped me to connect the science of nutrition with our everyday habits, and I'm really looking forward to share some with insights with you all today. So, the very first question I want to ask you that what exactly craving is? Is it similar like our daily basis hunger? So no, there is a huge difference between food craving and hunger. So food craving, it is intense urge for a specific food. Okay, and hunger indicates that your body needs some energy and nutrients. Okay, so this is the major difference between food craving and hunger. So hunger जो है it comes from stomach, but food cravings जो है it depends on your mood, on your habits, on if you are under stress. So it depends on that. एंड अगर एग्जाम्पल देना रहा तो फूड क्रेविंग का जो है तो लाइक फूड क्रेविंग में आपको एक स्पेसिफिक चीज खाने की इच्छा होगी, सपोज चॉकलेट, बट हंगर में आप यू कैन ईट एनीथिंग क्योंकि आपको भूख लगी होती है, राइट? सो यू विल ईट दाल, राइस, चपाती, एनीथिंग. बट अगर मैं आपको अगर फूड क्रेविंग हो रहा है और मैं आपको दाल, राइस, चपाती दूँ तो ऑब्वियसली यू वोंट ईट दैट. Yeah. Right. So that is the major difference between food craving and hunger. The reason I have asked you this question because people out there, including me, who still thinks that craving and hunger is similar. बिकॉज हमें भूख लगती है, हम सोचते हैं कि हमें चॉकलेट खाना है तो चलो मतलब भूख लगा है और मुझे क्रेविंग हो रहा है. वी जस्ट कंबाइन दिस बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर. नो, बट फूड क्रेविंग जो है वो एक स्पेसिफिक फूड के लिए होती है और वो स्पेसिफिक फूड खाने के बाद ही आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. So that is food craving, and hunger is something very different. So basically both are different. Yes, both are different. Yeah. So what are the common cravings which people usually face? Okay, so like according to me, like whatever I have heard, so mostly लोगों को sweet foods के लिए ज़्यादा craving होती है. Yeah. तो everything sweet में like chocolates हो, sweets हो, तो स्वीट फूड्स में ये बेसिकली ज़्यादा ये दो चीज़ों का क्रेविंग्स होता है. देन सॉल्टी एंड सेवरी फूड्स के लिए भी क्रेविंग होता है, लाइक चिप्स. या द मोस्ट कॉमन वन आई वुड से. एंड या कोई किसी किसी को आइस का भी बहुत क्रेविंग होता है. Oh God, I can't tell you. So yeah, like craving for ice is the most common one, and most of the people experience that craving. I would just give you my example only. I am the person who genuinely crave for ice. I don't know for what purpose. Like मैंने पूछा होगा, काफी लोगों से पूछा, they told कि आपको आयरन की कमी है due to this XYZ reason. Yes. But I crave a lot. मतलब समझो अगर मैं अभी मैंने आइस खा लिया, then in night or maybe in afternoon मुझे फिर खाना है आइस. But I never realized कि किस वजह से होता है, क्या रीजन है इस चीज के पीछे. ओके, सो ये लाइक क्रेविंग फॉर आइस ये जो है तो इट इज एन अंडरलाइंग you have an underlying health issue. Yeah, which is called as pica. So pica is something which you crave for non-nutritive substance. Okay, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये जो आइस का क्रेविंग है तो वो मोस्टली रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया के लिए होता है. तो लाइक आई वुड सजेस्ट कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन कंसल्ट टू अ डॉक्टर कि कि आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रहा है आइस के लिए, पर्टिकुलरली आइस. यस, बट अगेन
इट डिपेंड्स कि आपको अगर क्रेविंग हो रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड ऑल्सो. Yeah. Like always, it is not related to something deficiency. Okay, it might depend on your mood, on your habit. So yeah, that matters. But you just highlighted that thing that it's unhealthy, or else you can say that I have kind of maybe issue and all. So is it very serious issue that people are facing? Because I guess it's not just me who does crave about eyes and all. Okay, so बच्चे कितने होते हैं जिनको क्रेव होता है आइज के बारे में? तो हाँ, उसके लिए ही आई वुड सजेस्ट कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर लाइक अगर ज़्यादा ही आपको क्रेविंग है तो यू शुड डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड दैट क्रेविंग को रिड्यूस करने के लिए हमें डार्क चॉकलेट खाना चाहिए. सो इज इट अ फैक्ट दैट जेन्युइनली रिड्यूस होता है? सो मतलब मैं इसके ऊपर बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर क्रेविंग रिड्यूस करना है तो आप कुछ टिप्स फॉलो करो. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फूड क्रेविंग और हंगर में डिफरेंस क्या है. डिफरेंट, या. तो अगर आपको कोई चीज़ के लिए क्रेविंग हो रहा है तो फर्स्ट पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या ये क्रेविंग है या मुझे भूख लगा है. ओके, हमें वी डोंट हैव पेशेंस टू थिंक दैट हमें क्रेविंग है या हंगर. वी जस्ट ओपन अ फ्रिज एंड फाइंड द चॉकलेट्स. सो दैट्स वहीं पे आप थोड़ा आपको don't handle the things, यस yeah. एग्जैक्टली. सो फर्स्ट थिंग, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या ये क्रेविंग है कि और क्या है. एंड सेकेंड थिंग आई वुड से कि स्टे हाइड्रेटेड. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो सी अगर स्वीट फूड्स के लिए क्रेविंग हो रही है आपको तो यू कैन ईट फ्रूट्स. या. सॉल्टी एंड सेवरी फूड के लिए अगर क्रेविंग हो रही है तो यू कैन ईट नट्स और रोस्टेड चिकपीस. एनी नट्स. या एनी. ओके. एंड अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कि अब तो भी कम नहीं हो रहा है तो इवन इफ आप वो खा रहे हो तो टेक इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट थिंक बिफोर ईटिंग. That's a task, I guess. Yeah. Because thinking before eating, that's a task. Because Yes. जब हम काफी भूख में रहते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें एक खाना में वो खाना है, तो उस वक्त हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड ये जो मैंने 3 टिप्स सजेस्ट किए उसके साथ मैं ये भी बोलूँगी गेट इनफ स्लीप. या, दैट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज हमारा रूटीन ऐसा हुआ है कि स्लीप हम लोग को प्रॉपर हम नहीं ले पाते या नहीं. किसी किसी को स्केड्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं होता है और किसी कोई लेता नहीं है, प्रॉपर स्लीप कंप्लीट नहीं होता है. सो इन दैट केस उससे भी क्रेविंग्स कभी कभी हो सकता है. डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली समवेयर इट माइट अफेक्ट योर हेल्थ. या, बिकॉज आई गेस एवरी पर्सन एंड एवरी डॉक्टर हैज सजेस्टेड दैट आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का नैप लेना चाहिए. एंड तो ये स्लीप मतलब इनफ स्लीप आपको लेना चाहिए. प्लस मोस्ट ऑफ द पीपल अपना मील स्किप करते हैं. ओके, सो क्या होता है कि स्किपिंग मील्स इट ऑफन बैकफायर्स. बिकॉज क्या होता है कि आप मील स्किप कर रहे हो तो आप वो टाइम का खाना पूरा ही कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हो, राइट. बट मील स्किप करने की वजह से आप ज़्यादा क्रेविंग आपको हो सकता है. या, बिकॉज बहुत से लोग मैंने देखा है दे बिलीव दैट अगर हम पूरे दिन का मील, आई मीन आफ्टरनून का मील नहीं खा रहे हैं तो वेट लॉस होगा. या फिर इतने से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली भी हूँ जो सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरे एंटायर दिन कुछ नहीं खाते, जस्ट टू बिलीव कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा. आई गेस इस चीज से डेफिनेटली हमारा हेल्थ पे एग्जैक्टली. तो अगर आप मील स्किप कर रहे हो तो आप आफ्टर अ पॉइंट आप वो टाइम के लिए नहीं खाओगे बट जब भी आप खाओगे तो थोड़ा ज्यादा खाओगे. एग्जैक्टली. सो दैट इज द मेन थिंग. एंड कैसे होता है क्रेविंग्स भी ज्यादा बढ़ती है. सो क्रेविंग्स शुगरी फूड्स के लिए भी बढ़ सकती है या सॉल्टी और सेवरी फूड्स के लिए भी बढ़ सकती है. सो इंस्टेड ऑफ फूड क्रेविंग्स बढ़ाने यू कैन ईट लिटिल, राइट. एग्जैक्टली. बट आई वुड से कि डोंट स्किप योर मील्स. ट्राई करो कि जितना वो टाइम टू टाइम हो, it would be better for you, for your health and overall well-being. And the very important thing I want to ask you that during PMS and pregnancy, जो उस वक्त के जो cravings होते हैं, is it normal या
यस, दे आर एब्सोल्युटली वेरी नॉर्मल, बिकॉज पीएमएस में क्या होता है कि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगती है। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है, तो वो क्रेविंग्स ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ओके, तो वो टाइम पे इसके लिए अब ज़्यादा क्रेविंग्स आपको होता है एक स्पेसिफिक फूड के लिए। बट देन बिटवीन, आई मीन एट दैट मोमेंट ऑफ पीएमएस, उस वक्त हमें क्रेविंग्स होती है जंक फूड खाने की, चॉकलेट्स खाने की, एंड काफ़ी सारी चीज़ें। इज इट फाइन टू ईट जंक एट दैट मोमेंट? So, like again, I would say कि try to find some alternative for that, and even if अगर आप खा रहे हो कि make sure कि आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो, in a very small Normal amount, amount. but I would say कि don't eat, and दूसरा, आप जितना हो सकता है आपका डाइट बैलेंस रखो, एंड मेक श्योर आपके डाइट में प्रोटीन, फाइबर प्रॉपर अमाउंट में हो, हेल्दी फैट्स, सो दैट आपको वो क्रेविंग्स कम करने में भी हेल्प करेगा। सो इन काफ़ी मैंने रील्स पे, आजकल तो रील्स में हमें पता चल जाता है डाइट चार्ट, वेट कैसे लॉस करने, काफ़ी सारी चीज़। द पीपल आउट देयर सजेस्ट कि हमें पम्पकिन से सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, काफ़ी सारी सीड्स कंज्यूम करनी चाहिए कि हमें हमारे बॉडी पर अच्छा यस इफेक्ट यस, करेगा। डेफिनेटली पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगेन ऐसे नहीं है कि आप खा रहे हो तो आप बहुत खा रहे हो। नॉर्मल अमाउंट। मेक श्योर कि यू आर कंज्यूमिंग इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। सो कैन वी टेक दैट, मतलब रेगुलरली इन ब्रेकफास्ट और नॉर्मल? या बट आई वुड सजेस्ट कि पहले देखो कि आप वो कंज्यूम कर रहे हो तो आपके बॉडी पे उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, बिकॉज नॉट एवरी वन इज लाइक, सब लोग वो चीज़ के लिए उनको रेडी है। हाँ, आई गेट। मतलब कोई एलर्जिक भी होता है, तो वो पता नहीं चलता है। सो पहले आप वो स्टडी करो कि आप ये खा रहे हो तो आपके बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। एंड जो आपने पूछा प्रेगनेंसी का, तो या इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी नॉर्मल, क्योंकि प्रेगनेंसी में वुमेन के न्यूट्रिएंट नीड्स बढ़ते हैं एट दैट मोमेंट। हाँ। यस, हार्मोनल शिफ्ट भी बहुत होता है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्रेविंग्स Cravings वो होना पीरियड during में, PMS and यस यस pregnancy. यस, इट इज़ वेरी नॉर्मल। So the next thing I want to ask you that is it true कि पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर हमने बच्चों से जंक फूड, जो चिप्स, चॉकलेट्स, उनसे छुपा दिया, आई मीन हाइड कर दिया, तो उस चीज़ से बच्चों का जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाएगा? तो इसके ऊपर मैं ऐसा बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, वो जंक फूड हाइड का करने से बेटर है कि उनको आप सिखाओ या एग्जैक्टली, टू, हाँ, कि बैलेंस डाइट क्या होता है, लाइक टू बैलेंस डाइट, एंड फिर हेल्दी चॉइसेस क्या क्या होते हैं। तो अगर आप उनको ये सब चीज़ें सिखाओगे तो वो खाने के टाइम पे वो थोड़ा एंजॉय करेंगे। या बिकॉज मतलब ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम देम, ये बता सकते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है, दैट इज मच बेटर फॉर योर बॉडी एंड योर हेल्थ। So that is the option. So hiding is, I would say कि it is not an option. गुड ऑप्शन, या बिकॉज आई फील दैट अगर बच्चों से हम अभी हाइड करेंगे तो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बाहर तो खाएंगे वो लोग Exactly. So आप अभी के लिए हाइड करोगे, बट उसके आगे का क्या? डेफिनेटली या। एंड आई गेस इस, जब अभी मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मे बी आपको पता होगा इस बारे में, मे बी कि मैंने काफी रील्स में इतने रील्स देखे इस बारे में कि अ ब्रांड नोन एज ओजीवा। ओके, तो बेसिकली ये जो ब्रांड है विच इज वेरी फेमस वेट लॉस के लिए, ओके, बट ऑल्सो टू कंट्रोल आर क्रेविंग्स। काफी एक्ट्रेस, बेसिकली ये जो ओजीवा ब्रांड है बहुत हाइप में आया भारती सिंह की वजह से, द कॉमेडियन, यू ओके, या यस, आई नो। तो उनके वजह से ओजीवा के बारे में हमें पता चला कि ओजीवा प्रोवाइड करता है टैबलेट्स, लाइक एक ट्यूब होता है जिसमें यू हैव 15 टैबलेट्स, ओके, जिसमें पानी में डाल के हमें वो रोज पीना है, लाइक इन मॉर्निंग एंड इन बिफोर डिनर। सो ये काइंड ऑफ सप्लीमेंट है। सो डू यू थिंक कि ऐसे सप्लीमेंट से, या फिर एंड ऑल्सो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी अच्छे हैं, लाइक एप्पल साइडर विनेगर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ब्स, सिनेमन पाउडर, इंग्रेडिएंट्स आर गुड एंड पीपल से काफ़ी इफेक्टिव भी है।
बट द मेन मेजर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि ये जो टैबलेट्स है, सप्लीमेंट्स है, डू दे रियली वर्क ऑन क्रेविंग्स? सो आई वुड से कि सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स जो होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपका क्रेविंग माइट भी रिड्यूस करेंगे, बट आई वुड से कि एक बैलेंस एंड मॉडरेट डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई गेट इट. यू नो, आप सप्लीमेंट्स एक लाइक फॉर स्पेसिफिक डेज आप खाओगे, राइट, बट उसके बाद क्या? तो उसके लिए आई वुड से कि अ बैलेंस डाइट एंड कंसिस्टेंट डाइट It's इज very important. मच मोर इम्पोर्टेंट. आई जस्ट से यू दैट मैंने जो ओजीवा के जो जिनके ब्रांड है ओजीवा, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाई है रील कि हम आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं बट इट्स Okay. योर जॉब टू मेंटेन योर डाइट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं होता है, आपका डाइट सबसे बड़ा, यू नो, कि या इट प्लेज अ मेजर रोल. ओवरऑल आपके हेल्थ, आपके बॉडी या ओवरऑल वेलबींग के लिए आपका डाइट प्लेज अ मेजर रोल. सो आई वुड से कि फोकस ऑन योर डाइट. यू नो, अगर आप डाइट आपका अच्छा रखोगे तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिकॉज Okay. अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सप्लीमेंट लेने के बाद उसके नेक्स्ट दिन या फिर उसी दिन में भी 1 आवर के बाद 2 आवर के बाद हम जंक फूड खा रहे हैं, तो कुछ yeah भी, yeah I it guess, is of कुछ no नहीं use. होगा. Exactly. So that is why I would say ki focus on your diet. Then you can, so Yes. it's safe to go for supplements. Yeah, it is safe, but Again, diet. Got yes. it. सो थैंक यू प्रीति कि आप आए और आपने इतने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए रिगार्डिंग क्रेविंग्स, डाइट, लाइक सप्लीमेंट्स, जंक फूड, स्पेशली आईज. आई कैन रिलेट इट, PMS, Yeah. pregnancy, a lot of things. So would you like to say something to our listeners? Definitely. So I would say, don't be afraid of cravings. Okay. Listen to your body and your mind. What it is trying to say. Yeah. Okay. And don't fight against your cravings. Try to stick to your diet. एंड इंस्टेड, सो लाइक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने से बेटर है कि आप आपका डाइट अच्छा रखो. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. So that's it for the podcast. Stay tuned for the upcoming MSCJ Mic'd Up podcast.